All right, so in the last lecture, we learned basics about bar magnet, magnetic field due to bar magnet on the axial line, magnetic field due to bar magnet on equatorial line, magnetic field due to bar magnet at a random point. Okay, so this is what we saw in the last lecture. तो आज के लेक्चर में हमें अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्टडी करना है. सो व्हाट वी वांट टू सी इन टुडेस लेक्चर इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म. तो अर्थ्स मैग्नेटिज्म हमें पढ़ना है. ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट विथ अर्थ्स मैग्नेटिज्म आई वुड लाइक यू टू नो few basic things. Okay, so for example, suppose this is earth and earth is a sphere. वैसे earth तो sphere होता नहीं है, earth is little ellipsoid, little bit अंडाकार shape होता है उसका, but assume earth is a sphere. तो आपको पता है कि अर्थ खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है. सो द लाइन अलोंग विच अर्थ रोटेट्स, मतलब दिस पर्टिकुलर लाइन, this line, the line along which earth spins or rotates is called as geographic axis. तो हम लोग अर्थ की मैग्नेटिज्म स्टार्ट करें सीखना इससे पहले देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी शुड नो. First is that we should know what is a geographic axis. So geographic axis is nothing but this line along which earth spins or rotates, that is geographic axis. Okay, we need not to worry about notes will be provided in typed form. हमको सिर्फ अभी जो important चीजें पता होनी चाहिए, that is what I am going to cover. Okay, तो simple है, you have a line about which earth rotates or spins, that is called as geographic axis. Then we should know what is geographic meridian. Okay, so a plane passing through geographic north and south of the earth is called as geographic meridian. देखो बेसिकली क्या है कि ये है अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये है अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल, राइट. ओके, तो ऐसा है बाय डेफिनेशन जियोग्राफिक मेरिडियन मतलब क्या. जियोग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन, वर्टिकल प्लेन which passes through north and south pole of earth. मतलब basically it passes through or it contains this geographic axis. Geographic meridian is a plane, ये एक plane है जो geographic axis contain करता है. मतलब ये जो geographic axis है वो उस plane में आएगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो it is a vertical plane. Geographic meridian is a vertical plane which passes through earth north and south pole. मतलब it is something like this. तो ऐसा एक प्लेन है, मान लो मैं सिर्फ इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ. सो दिस इज जस्ट लाइक दिस प्लेन. तो ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास होगा. आई नीड टू डिलीट दिस बिकॉज हमको और भी कुछ दिखाना है यहाँ पे, राइट. देन यू शुड नो व्हाट इज जियोग्राफिक इक्वेटर. तो इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस. मतलब मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये प्लेन है जो अर्थ के जियोग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है, राइट. सो दिस इज अ प्लेन, जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया है इज अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ. इस पे जो ग्रेट सर्कल है दैट इज इक्वेटर. आपको पता है अर्थ का इक्वेटर कहाँ लाया करता है, तो ये वही इक्वेटर की बात हो रही है. दिस इज दैट इक्वेटर. So as you can see from diagram, a great circle which lies in a plane perpendicular to geographic axis is called as geographic equator
या तो इक्वेटोरियल सर्कल. So I'm going to delete all this here because otherwise the diagram will become much more complicated. हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखानी है. तो I'll draw this geographic equator here. तो ये आ गया आपका geographic equator and we'll name it. So this is equator and this is geographic equator. Geographic equator. So geographic equator is nothing but a great circle on a plane perpendicular to geographic axis. So I will repeat this for you and also I will write down few lines here so that you remember this. याद रखने के लिए. तो हमने सबसे पहले देखा geographic axis क्या है. It is nothing but a straight line around which Earth spins. A straight line around which Earth spins or rotates is called as geographic axis. So geographic meridian मतलब as we just discussed, geographic meridian क्या था? At a given place, it is a vertical plane passing through the geographic north and south pole of Earth. मतलब passing मतलब ये जो plane होगा जो नॉर्थ और साउथ पोल से पास हो रहा है ये जियोग्राफिक एक्सिस को भी उस प्लेन में कंटेन करेगा. सो at a given place it is vertical plane, it is a vertical plane passing through the geographic north, passing through the geographic north and south pole of the earth and south pole of the earth, passing through geographic north and south pole of the earth. Then we saw what is geographic equator. तो geographic equator मतलब क्या होता है? तो geographic equator, as I told you, it is a great circle on the surface of Earth on the plane perpendicular to geographic axis. So it is a great circle on the surface of Earth, in a plane perpendicular to the geographic axis, perpendicular to the geographic axis. Okay. अब हम इन रियलिटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो ये तो जस्ट मैंने फॉर योर इंफॉर्मेशन बता दिया. अभी अर्थ का मैग्नेटिज्म ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ऐसा है, इफ यू नो, आप डायरेक्शंस के लिए एक कंपास का यूज करते हो. कंपास में निडल होता है और वो निडल आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है. तो होता ऐसा है कि अगर मैं एक निडल को, मैग्नेटिक निडल को, मान लो ये एक मैग्नेटिक निडल है, अगर मैं इस मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूँ, फ्रीली सस्पेंड करना मतलब क्या? मैंने इसको रस्सी पे बांधा और मैंने छोड़ दिया, तो वो अपने आप खुद को ओरिएंट कर लेता है. दैट मैग्नेटिक निडल अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. लेकिन कौन सा नॉर्थ साउथ? ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ. अपने आप कोई भी निडल अलाइन नहीं करता.
हमने एक नीडल लिया, एक रस्सी बांधी और उस रस्सी को ऊपर टांग दिया, नीडल इज फ्री। तो नीडल खुद को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, गुड। तो द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो स्टडी है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो स्टडी है, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर जियो मैग्नेटिज्म। All this will go into notes. So the study of Earth's magnetic field is called as terrestrial magnetism or geomagnetism. तो अर्थ को हम एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। सो वी कैन अज्यूम, पहले तो मैं अर्थ का साइज बढ़ा देता हूँ बिकॉज आई नीड टू शो लिटिल बिट बिगर। तो मान लो दिस इज अर्थ। ओके, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, ये गुड इनफ। ओके, इक्वेटर को भी सरका लेते हैं यहाँ पे। वेरी गुड, दिस इज इक्वेटर हियर। ओके, जस्ट अ मिनट, गुड। दिस इज अर्थ इक्वेटर, एक्सेलेंट, राइट। तो एज आई टोल्ड यू कि अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो नीडल खुद को अर्थ के नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा। तो अर्थ को हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं दैट द अर्थ इटसेल्फ is a very big bar magnet. So we can assume that Earth itself is a big bar magnet. तो ये जो मैं मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ, it is an imaginary magnet because we can assume, we can imagine Earth to be made up of a big bar magnet. तो I'll give it some name. Suppose ये साउथ पोल है, लेकिन ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है बट ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो इंटेंशनली मैंने ऐसा ड्रॉ किया है बिकॉज अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल इज नियर टू, या फिर उल्टा बोल सकते हो, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल इज नियर टू अर्थ जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल। अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल ये अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में आता है। मतलब उल्टा है, अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जहां पे, वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल, और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जहां पे, वहां पे अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल, राइट। तो सिमिलरली जैसे हमने जियोग्राफिक एक्सिस हम लोगों ने डिफाइन किया, वैसे ही अ लाइन पासिंग थ्रू magnetic north pole and magnetic south pole of the earth is called as magnetic axis. तो जैसे हमने जियोग्राफिक एक्सिस डिफाइन किया था, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो a line which passes through magnetic south and magnetic north pole of the earth is magnetic axis. जैसे जियोग्राफिक इक्वेटर ये जियोग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर था, वैसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर ये मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। ओके, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। ये था जियोग्राफिक इक्वेटर। and as we learned about geographic meridian, right, a vertical plane passing through geographic north and south pole was called as
geographic meridian, right? तो this was geographic meridian, क्योंकि ये मान लो ये एक प्लेन है, so I'll draw a plane just to make you understand. I'll draw a plane. तो मान लो ये एक प्लेन है जो पास हो रहा है फ्रॉम जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. सिमिलरली यहाँ पे एक प्लेन होगा विच विल पास थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. उस प्लेन को हम लोग बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, समथिंग लाइक दिस. ओके, सॉरी फॉर दिस. सॉरी. ओके, राइट, गुड. तो दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन मैं फटाफट से वापस रिपीट कर देता हूं. देखो, जियोग्राफिक एक्सिस अर्थ रोटेट हो रहा है, हमको पता है. अर्थ जिस लाइन के अलाउंग रोटेट होगा वो जियोग्राफिक एक्सिस हो गया, मतलब अ लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ. ओके, अब अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन लेता हूं, अ वर्टिकल व्हिच पासेस थ्रू जियोग्राफिक साउथ एंड नॉर्थ पोल, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन. देन a great circle drawn on a plane perpendicular to geographic axis. geographic axis vertical है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, तो ये वर्टिकल एक्सिस को, जियोग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, उस पे जो ग्रेट सर्कल होगा जो अर्थ की सरफेस पे है, दैट इज जियोग्राफिक इक्वेटर. सिमिलरली अर्थ itself behaves as if it is a very big bar magnet. क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने नीडल को हैंग कर दिया, नीडल खुद को अपने आप अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ पोल. मतलब अर्थ हैज गॉट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो हम अर्थ को एक बड़ा बार मैग्नेट अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इन रियलिटी जियोग्राफिक साउथ के पास में है. उल्टा है, जहां पे जियोग्राफिक साउथ वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ, जहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ वहां पे जियोग्राफिक साउथ. ओके, ऐसा है, राइट. गुड, मतलब नियर है, एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं होता. तो अब जो अर्थ का नॉर्थ पोल, कौन सा नॉर्थ पोल? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक साउथ पोल तक लाइन जाएगी, द लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस. सिंपल. ओके, देन a plane which contains magnetic north and magnetic south of the earth is called as magnetic meridian. तो जैसे geographic axis magnetic axis, जैसे geographic meridian magnetic meridian, जैसे geographic equator magnetic equator. It is a great circle on the surface of earth in a plane perpendicular to magnetic axis, that is geographic, that is magnetic equator. तो हम एक एक करके ये भी लिख लेंगे because it will help you out. Okay, right. So let us put point by point. By the way, ये space मैंने खाली इसलिए छोड़ा है just to tell you that the study of Earth's magnetic field, Earth's magnetic field is called as terrestrial magnetism. Yeah, but it is also called as geomagnetism. It's called as terrestrial magnetism or geomagnetism. So these nodes, they will be like just like a compact note, or exact notes I will be uploading as I am telling you again and again. Right. Then what else we had to define? हमें डिफाइन करना था मैग्नेटिक एक्सिस. तो हम लोग पहले मैग्नेटिक एक्सिस डिफाइन कर देते हैं. तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? टोल्ड यू, a line passing through magnetic poles of the earth, a line passing through
The magnetic poles of Earth, passing through the magnetic poles of Earth, is called as magnetic axis, or as you can see from diagram, magnetic axis और geographic axis, they are not aligned to each other. वो coincide नहीं होते. They do not coincide. They do not overlap. इसका मतलब they are inclined to each other at some angle. So it is inclined, मतलब magnetic axis is inclined. It is inclined to the Earth's geographic axis, to the Earth's geographic axis at या फिर by nearly 11.3 degrees. By nearly 11.3 degrees. Okay, so let's go ahead and define what is magnetic meridian. Magnetic meridian, जैसे हमने जियोग्राफिक मेरिडियन डिफाइन किया वैसे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन भी डिफाइन कर सकते हैं. Okay, so we defined it already. So it is at any place, at any place. It is a vertical plane. It is a vertical plane passing through. It is a vertical plane passing through the magnetic north and south of the earth. Similarly, as we defined geographic equator, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर भी डिफाइन कर सकते हैं. तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो मैग्नेटिक इक्वेटर कैसे डिफाइन करेंगे? सेम. It is a great circle on the surface of earth in a plane perpendicular to magnetic axis. Because I am lazy, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो जियोग्राफिक इक्वेटर का डेफिनेशन है मैं वही यूज कर लूंगा. एंड आई विल जस्ट paste it here and then make necessary modifications. Okay, so that's all I'm going to do. So magnetic equator, good. Let's delete this. So it is a great circle on the surface of earth in a plane perpendicular to magnetic axis. That is the only difference. That's the only difference. Okay, so easy है. Next definition that we should know is what is magnetic declination. Magnetic declination. Okay, so as we see from the diagram, हम जो इस डायग्राम से देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग? हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस they are not in the same direction but they are aligned to each other at some angle theta. ये जो एंगल थीटा है between geographic axis and magnetic axis of earth या फिर geographic meridian and magnetic meridian of earth is called as magnetic declination. Simple है. So we see that
geographic meridian and magnetic meridian of Earth, they are not in the same plane or they are not in the same direction. They are aligned to each other at some angle. That angle is called as magnetic declination. Is here. So it is observed that magnetic meridian and geographic meridian are inclined to each other, are inclined to each other at some angle, are inclined to each other at some angle, at certain angle. This angle is called as magnetic declination. Okay, what else do we need? Next definition is angle of dip. Angle of dip. तो what is this angle of dip now? इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे. What is this angle of dip? देखो ऐसा है that at any place on earth, okay, at any place on earth, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, एम मैग्नेटिक मेरिडियन, so the angle made by earth's magnetic field with respect to horizontal, और हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक मेरिडियन को भी अलाइन कर दिया है. सो द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लो. मैं ऐसा करता हूँ, आई विल शो यू सम गुड डायग्राम सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेटर वे. हम ऐसा करते हैं, ये एक जियोग्राफिक मेरिडियन में ड्रॉ कर लेता हूँ. सो दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन. और जब मैं मेरिडियन बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मेरिडियन जो है वो एक प्लेन होता है. एक्सिस जब मैं बोलता हूँ तो एक्सिस एक सिंगल लाइन होता है. तो यू शुड नो दिस. एक्सिस इज अ सिंगल लाइन whereas मेरिडियन इज नॉट अ सिंगल लाइन. मेरिडियन इज अ प्लेन. मेरिडियन ये 2 डायमेंशनल प्लेन होता है. एक्सिस इज सिंगल 1 डायमेंशनल लाइन होती है, ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले ये मैंने ड्रॉ कर लिया जियोग्राफिक मेरिडियन. ये जियोग्राफिक मेरिडियन है. ओके, तो मैं इसको नाम दे दूंगा बाद में. एंड देन आई विल ड्रॉ मैग्नेटिक मेरिडियन. और आपको पता है दैट मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन, इन दोनों में एक एंगल बनता है. सो दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव इट सम नेम सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो रेड में मैंने बताया है ये है आपका जियोग्राफिक मेरिडियन. ओके, तो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल बनेगा थीटा, इसको हमने बोला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. अब आप अर्थ पे किसी भी पोजीशन पे अगर हो तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कुछ तो डायरेक्शन होगा ना. व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज आप अर्थ पे इस पोजीशन पे हो, मान लो यहाँ पे हो, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन होगा. दिस इज डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. कुछ तो डायरेक्शन होगा ना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का. नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, अलोंग इक्वेटर, अलोंग पोल. Earth's magnetic field will always have certain direction at every place on earth. तो मैं मान लेता हूं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. लेट्स अज्यूम
This is direction of Earth's magnetic field, which is given by B bar. This is B bar here. Earth magnetic field का डायरेक्शन है, राइट? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने, जस्ट अ मिनट, यस, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ एंगल बनाया है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप, राइट? The angle made by Earth's magnetic field with respect to horizontal is called as angle of dip. But wait a minute, हम लोग मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो मैग्नेटिक कंपास बेसिकली वो आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही बताता है. ओके, तो आप बोल सकते हो वो जो कंपास होता है, आपको पता होगा एक कंपास होता है, उसमें नीडल होता है, समथिंग लाइक दिस, सम काइंड ऑफ नीडल. Pardon me for my drawing, मेरा drawing कोई इतना अच्छा है तो नहीं, but anyways, let's say this is magnetic compass, right? तो मैग्नेटिक कंपास और कंपास में जो नीडल होता है इसको डिप नीडल बोलते हैं, डिप नीडल. ओके, तो द आइडिया इज वेरी सिंपल. ये जो डिप नीडल है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है हमेशा. तो हमने एंगल ऑफ डिप कैसे डिफाइन किया था? द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप. तो वैसा भी बोल सकते हो, द एंगल मेड बाय डिप नीडल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज आल्सो एंगल ऑफ डिप. सिंपल है, राइट? एक्सट्रीमली सिंपल. सो वी कैन डिफाइन very simple, the angle between dip needle या फिर magnetic needle, between the dip needle or earth's magnetic field, earth's magnetic field and the horizontal is called as angle of dip. Good. Now as you can see, हम लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं. एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ पे होगा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH. So this will be horizontal component over here BH, and of course this BH will be B cos delta क्योंकि adjacent है तो B cos delta. और एक दूसरा कंपोनेंट हम कर सकते हैं इसका जो यहाँ पे होगा वर्टिकल कंपोनेंट, that will be B sin delta. This one here, ये आएगा B vertical component, और of course B vertical will be B sin delta. गुड गुड. तो ये दो कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के. एंड ऑब्वियसली एज यू नो दैट आप अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा tan डेल्टा. So if you take ratio of these two, you will get something, you will get tan delta, क्योंकि in terms of horizontal and vertical magnetic field. So if I divide this, I will get tan delta is equal to vertical component of Earth's magnetic field upon horizontal component of Earth's magnetic field. And of course, as you know, क्योंकि ये BV और BH ये B के components है, तो मैं B का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ BV स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर. तो बहुत सिंपल सा केस था ये, एक्सट्रीमली सिंपल. तो यू शुड नो दिस, बहुत सिंपल है ये. ओके, तो एंगल ऑफ डिप समझा है, ये डायग्राम समझा है,
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन समझा है, मैग्नेटिक इक्वेटर समझा है. दिस इज ऑल assumption. This is my assumption, and then these notes are also very good, but I will also put more notes into it. Now it is time for us to solve some numericals. Okay, so let's solve example 12.1. A short magnetic dipole has magnetic moment 0.5 ampere meter square. Calculate its magnetic field at a distance of 20 centimeters from the center of magnetic dipole on the axis and on the equatorial line. तो गिवन क्वांटिटीज में आपको क्या क्या दिया है? सो इन द गिवन क्वांटिटीज आपको बोला है अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मतलब m 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. आपको बोला है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो आपको याद होगा कि मैग्नेटिक डायपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस को हमेशा r से डिनोट करते हैं, दैट इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर हो गया वो. राइट, गुड. देन म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू आपको दी है. म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 7 दी है एसआई यूनिट्स में. आपको फाइंड करने के लिए बोला है दो केसेस, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस बी एक्सिस और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर बी इक्वेटर. मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, दो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला है आपको. फॉर्मूला फॉर्मूला हमने बहुत बार ये फॉर्मूला हमने रिपीट किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा ही. तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा. दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, हमारा बहुत बार हुआ है तो आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू नो दिस. दूसरा बी इक्वेटर. इक्वेटर पे सिर्फ म्यू 0 बाय 4 पाई 2 नहीं आता, m बाय r क्यूब होता है. तो सीम्स वेरी सिंपल, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालनी है. तो पहला एक्सिस पे जब फाइंड करोगे तो म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 7 है, इंटू 2 इंटू एम की वैल्यू 0.5 है, अपॉन आर, आर इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 माइनस 1, सॉरी, क्योंकि सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर, इसका क्यूब. दैट्स इट, हो गया सॉल्व. तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू 0.5 इज 1, ये ऊपर जो है 2 इंटू 0.5 दैट बिकम्स 1, 10 पावर माइनस 7 इंटू ये नीचे जो 10 पावर माइनस 3 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा. ओके, गुड, अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8, है ना. 1/8, 1/8 आपको पता होना चाहिए हाउ मच इज 1/8. तो 1/8 टर्न्स आउट टू बी 1.1/8 is 0.125 into 10 power minus 7 plus 3 is minus 4. मतलब इन शॉर्ट 1.25 into 10 power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा. तो यू विल फाइनली गेट दिस आंसर टू बी 1.25 into 10 power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला. ओके, तो ये टेस्ला में या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर में आएगा. सिमिलरली हमको ऑलरेडी पता है कि बी एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटर, राइट. और हमें फॉर्मूला लिखा भी है हमने, बी एक्सिस इज म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब एंड बी इक्वेटर इज म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय r क्यूब. मतलब बी इक्वेटर, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ ऑफ एक्स आती है. तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट एक्सिस आती है अगर डिस्टेंस सेम है. मतलब आप उसी r डिस्टेंस पे एक्सिस पे फाइंड कर रहे हो, उतने ही डिस्टेंस पे इक्वेटर पे फाइंड कर रहे हो, तो हाफ आती है. so the value turns out to be half. तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो you will get half of this, मतलब 0.625, क्योंकि 1.25 का half is 0.625 into 10 power minus 5. Of course unit will also remain same, Weber per meter square.
या फिर टेस्ला। ओके गुड। एग्जाम्पल 12.2, तो एग्जाम्पल 12.2 इज सिंपल, Earth's magnetic field at equator। तो इक्वेटर पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला बोला गया है। गुड गुड। कैलकुलेट कैलकुलेट अर्थ डाइपोल मोमेंट। आपको रेडियस ऑफ अर्थ आर दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। डजेंट मैटर इफ यू यूज कैपिटल आर और स्मॉल आर। आपको μ0/4 पाई की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻7 SI यूनिट्स। आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज अर्थ्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m फाइंड करने के लिए बोला है। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हमको पता है दैट बी इक्वेटर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट अर्थ इक्वेटर, बी इक्वेटर इज इक्वल टू μ0/4 पाई m/r क्यूब एंड वी सपोज टू फाइंड आउट m। हमको m फाइंड करना है तो बहुत सिंपल हो जाता है इससे, बिकॉज देन यू कैन राइट m इज इक्वल टू b इक्वेटर इंटू r क्यूब अपॉन μ0/4 पाई। b इक्वेटर की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻5 है, r क्यूब 6.4 इंटू 10⁻+6 का क्यूब अपॉन μ0/4 पाई की 10⁻�7। तो ये आपका आएगा 4 इंटू 6.4 का क्यूब 10⁻5 और 6 इंटू 3 18 माइनस 5 इज 13 और ये नीचे का 10⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे का 10⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻20। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 105 पॉइंट समथिंग और 104 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 105 इंटू 10⁻20 एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अर्थ। ओके, क्योंकि अर्थ का ही पूछा है इसलिए ऑफ अर्थ, राइट। डन। सो वी आर डन फॉर द डे। अगले क्वेश्चंस कुछ बाकी है, तो फ्यू मोर क्वेश्चंस विल बी एडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम करेंगे एंड देन सो विच मीन्स कि नेक्स्ट सेशन विल बी अ वेरी शॉर्ट सेशन। ओके, तो हम उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो विल एंड हियर।